کائنات کے رازوں میں ایک راز ایسا ہے جو صدیوں سے زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتے تھے وہاں کی سوکھی زمین سے زندگی پھوٹ پڑتی تھی، بنجر مٹی سبز ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، نہ ہی کوئی فرشتہ، مگر اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی تلاش میں طویل سفر کرنا پڑا۔ یہ داستان ہے حضرت خضر علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھے اور ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اے اللہ کے نبی، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے؟ کیا کوئی ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہو؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور ہے۔ نبی کا مقام بہت نازک ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے علم کو اللہ کی طرف لوٹانے کے بجائے اپنی طرف منسوب کر لیا، اور فوراً آسمانوں سے جبرائیل آمین پیغام لے کر اترے۔ اے موسیٰ، تم غلطی پر ہو۔ میرا ایک بندہ ہے جو 2 سمندروں کے سنگم پر رہتا ہے۔ میں نے اسے اپنی خاص رحمت اور وہ علم لدنی عطا کیا ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ اے میرے رب، میں اس بندے سے کیسے مل سکتا ہوں؟ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے صدیوں تک چلنا پڑے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، نشانی یہ ہے کہ جہاں یہ مردہ اور بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے اور پانی میں اپنا راستہ بنا لے، وہیں تمہیں میرا وہ بندہ ملے گا۔ اور یوں ایک عظیم پیغمبر ایک انجانے راستے کا مسافر بن گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے عجیب اور مشکل امتحان بننے والا ہے۔ سفر طویل تھا اور راستہ دشوار۔ جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ وہ ایک بڑی چٹان کے سائے میں آرام کے لیے لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن جب وہ سو رہے تھے، قدرت کا نظام جاگ رہا تھا۔ سمندر کے پانی کا ایک چھینٹا اس مردہ اور بھنی ہوئی مچھلی پر پڑا، اور پھر وہ ناممکن ہوا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ مچھلی میں جان آ گئی۔ وہ تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر سیدھا سمندر میں کود گئی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ پانی نے مچھلی کا راستہ نہیں روکا۔ جہاں جہاں سے وہ گزری، پانی جم گیا اور ایک سرانگ بن گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی نشانی تھی۔ نوجوان ساتھی یوشا نے یہ منظر دیکھا۔ ٹوکری خالی تھی، مگر شیطان نے ان کے دل پر ایک پردہ ڈال دیا۔ وہ حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گئے اور دونوں غلط جانب میں چل پڑے، اپنی منزل کو پیچھے چھوڑ کر۔ ہم اپنے اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں، ہمارا ناشتہ لاؤ، اب بھوک لگ رہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں آپ کو مچھلی کا بتانا بھول گیا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے بھلا دیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چلو واپس چلو۔ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے، اسی چٹان تک جہاں وہ روکے تھے، اور وہیں انہیں وہ مل گئے جنہیں اللہ نے اپنی رحمت کے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا اس سرزمین پر بھی سلامتی موجود ہے؟ تم کون ہو؟ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ تمہارے پاس ظاہر کا علم ہے اور میرے پاس باطن کا۔
और इंसान इस बात पर सब्र कैसे कर सकता है जिसकी हकीकत वो नहीं जानता। इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। मैं वादा करता हूं मैं आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा। अगर मेरे साथ चलना है तो शर्त यह है कि मुझसे कोई सवाल मत करना जब तक मैं खुद तुम्हें उसका राज ना बता दूं। सफर शुरू हुआ। उन्हें दरिया पार करने के लिए एक कश्ती की जरूरत थी। कश्ती के मालिक बहुत गरीब लोग थे मगर दिल के अमीर थे। उन्होंने जब इन दो बुजुर्गों को देखा तो पहचान लिया कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। उन्होंने उनकी इज्जत की खातिर किराया लेने से इनकार कर दिया और दोनों को बिला मुआवजा में अपनी कश्ती पर सवार कर लिया। मगर अभी कश्ती बीचों बीच में थी कि अचानक खिजर ने कुल्हाड़ी उठाई और जिस कश्ती ने उन्हें बिला मुआवजा सवार किया था उसी का तख्ता उखाड़ दिया। ये आपने क्या किया? इन लोगों ने हम पर एहसान किया, हमें मुफ्त सवार किया और आपने बदले में उनकी कश्ती तोड़ दी। क्या आप इन सब गरीबों को डबोना चाहते हैं? ये तो आपने बहुत ही गलत काम किया है। क्या मैंने शुरू में ही नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मुझसे भूल हो गई। मेरे मामले में सख्ती ना कीजिए। मैं वादा करता हूं अब नहीं बोलूंगा। पहला सवाल उठ गया मगर जवाब अभी बाकी था। मूसा अलैहिस्सलाम की नजर किश्ती के टूटे हुए तख्ते पर थी मगर वो नहीं जानते थे कि इस तोड़ फोड़ के पीछे अल्लाह की कौन सी हिकमत छुपी है। किश्ती का मामला एक राज बनकर रह गया और सफर दोबारा शुरू हुआ। वो एक बस्ती के करीब से गुजरे जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो सब खूबसूरत, सेहतमंद और हंसते मुस्कुराते बच्चे थे। मगर खिजर की नजर उनमें से एक खास लड़के पर जुम गई और फिर एक लम्हे की देर किए बगैर खिजर ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसे कत्ल कर दिया। एक हंसती खेलती जान मट्टी के ढेर में बदल गई। ये मंजर कश्ती तोड़ने से भी ज्यादा भयानक था। ये आपने क्या किया? क्या आपने एक पाक और मासूम जान ले ली? हालांकि उसने किसी का कत्ल भी नहीं किया था। किश्ती तोड़ना तो माल का नुकसान था मगर ये तो आपने बहुत ही भयानक और नापसंदीदा हरकत की है। मूसा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकोगे? मोजा तुम्हारी शरीयत जाहिर देखती है और मेरा इल्म अंजाम देखता है। अगर अब इसके बाद मैंने आपसे किसी चीज के बारे में सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा। बेशक अब मेरी तरफ से उज़र पूरा हो चुका है। मौत की वो गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि तीसरा इम्तिहान सर पर आ खड़ा हुआ। एक ऐसा इम्तिहान जहां गुस्सा नहीं बल्कि भूख और थकावट उनका इम्तिहान लेगी। सफर जारी रहा यहां तक कि वो एक बस्ती में पहुंचे। दोनों भूख से नढाल थे। उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा। मेहमान नवाजी की दरख्वास्त की मगर इस बस्ती के लोग निहायत बखील थे। उन्होंने इन दो मुसाफिरों को खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई उसी बस्ती में जहां के लोगों ने उन्हें पानी तक न पूछा। खिजर ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है। भूख और प्यास के बावजूद खिजर ने अपने हाथों से इस दीवार को सीधा करना शुरू कर दिया। उन्होंने घंटों मुशक्कत की और गिरती हुई दीवार को दोबारा खड़ा कर दिया बगैर किसी मुआवजे के। ये आपने क्या किया? इन लोगों ने तो हमारी मेहमान नवाजी तक न की, हमें खाना नहीं दिया और आपने मुफ्त में इनका काम कर दिया। बस ये मेरी और तुम्हारी जुदाई का वक्त है। तुमने तीसरी बार सवाल कर दिया। अब तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें उन तीनों बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर तुम सब्र ना कर सकें। सुनो कि कश्ती क्यों टूटी, बच्चा क्यों जान से हाथ धो बैठा और दीवार क्यों बनाई गई। सुनिए, वो कश्ती चंद गरीबों की थी जो समंदर में मजदूरी करते थे। उनके आगे एक जालिम बादशाह खड़ा था जो हर सही और सालिम कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। और वो लड़का, उसके माँ बाप मोमिन और नेक लोग थे। अल्लाह जानता था कि अगर ये बड़ा हुआ हमने उसे कत्ल किया ताकि अल्लाह बदले में उन्हें ऐसी औलाद दे
जो पाकीज़ा हो और उनसे मोहब्बत करने वाली हो। और रही वो दीवार, तो वो शहर के 2 यतीम बच्चों की थी और इसके नीचे उनका खजाना दफन था। अगर दीवार गिर जाता तो बस्ती के लालची लोग वो खजाना लूट लेते। ये है हकीकत इन बातों की जिन पर तुम सब्र ना कर सके। और याद रखना मूसा, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि ये सब अल्लाह का हुक्म था। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि जो हमें शर लग रहा होता है वो अल्लाह की खैर होती है, जो हमें बर्बादी लगती है वो दरअसल हिफाजत होती है। खिज़र अलैहिस्सलाम चले गए, मगर ये नसीहत हमेशा के लिए छोड़ गए। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी समझ से बाहर है, तो सब्र करें। हो सकता है अल्लाह आपकी कश्ती तोड़ रहा हो ताकि आपको डूबने से बचा सके, क्योंकि वो जानता है और आप नहीं जानते। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी खत्म हुई, मगर खज़र का सफर जारी रहा। सवाल ये है कि ये पुरासरार बुजुर्ग आखिर हैं कौन? तारीख के औराक बताते हैं कि वो बादशाह ज़ुल्क़ुरनैन के खालाजाद भाई थे, वही ज़ुल्क़ुरनैन जिनका जिक्र कुरान में आया है। और बाज़ उलमा का मानना है कि वो बराह रास्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम या फिर आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से हैं, यानी वो सदियों से इस जमीन पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को तय्युल मकान की ताकत दी है, यानी वो एक लम्हे में किसी भी जगह और वक्त में जा सकते हैं। क्या खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं? अहले नज़र कहते हैं कि हाँ। कहा जाता है कि हर साल हज के मौके पर वो मक्का मुकरमा आते हैं। वहाँ वो और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम मुलाकात करते हैं। वो इकट्ठे तवाफ करते हैं और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगते हैं। और रुखसत होने से पहले वो दोनों जमजम के कुएं से पानी पीते हैं, जो उनके लिए पूरे साल का रिज्क काफी हो जाता है। खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ पुरानी किताबों तक महदूद नहीं, वो आज भी भटके हुए मुसाफिरों की मदद को पहुंचते हैं। कभी मुसीबत में कोई अनजान शख्स गैब से आकर आपकी मदद करे और आपका काम बन जाए, और जब आप शुक्रिया अदा करने के लिए पलटें तो वो गायब हो चुका हो, तो अपने दिल से पूछना कि कहीं वो खिज़र तो नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें खिज़र सब्ज वाला इसलिए कहा जाता है कि जब वो सूखी ज़मीन पर बैठते हैं तो वो हरी भरी हो जाती है। ये किस्सा सिर्फ माजी की दास्तान नहीं, ये आज आपकी कहानी है। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में आपकी कश्ती में सुराख कर दिया जाता है, नौकरी चली जाती है, कारोबार डूब जाता है या दिल टूट जाता है। आप रोते हैं कि मेरा नुकसान क्यों हुआ, मगर आप नहीं जानते कि अल्लाह ने ये किश्ती इसलिए तोड़ी ताकि आपको किसी बड़े बादशाह यानी किसी बड़ी मुसीबत से बचा सके। वो सुराख दरअसल हिफाजत थी। कभी कभी अल्लाह आपसे वो चीज़ ले लेता है जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब बच्चे के बारे में वो फैसला हुआ, ये बात बहुत सख्त महसूस होती है। इंसान बेख्तियार हिल कर रह जाता है। मगर खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह कभी कुछ नहीं लेता, मगर ये कि वो बदले में इससे बेहतर अता कर दे या आपके ईमान को बचा ले। तो जब ज़िंदगी समझ में ना आए और हालात आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तो हज़रत मूसा की तरह बेसब्री मत दिखाना, बस मुस्कराना और कहना कि मेरा रब खिज़र का भी रब है, वो जो भी कर रहा है उसमें खैर है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को सुकून दिया है तो इसे शेयर ज़रूर करें, शायद किसी दुखी दिल को इसकी ज़रूरत हो। अल्लाह हाफ़िज़।